Good afternoon, students. Today we'll do questions and answers of our story, Ivan tries O-level test. बेटे क्वेश्चंस और आंसर्स जो अभी हम करेंगे, दीज आर 2 marks क्वेश्चंस ऑफ आंसर्स. 1 mark तो वो विद द थॉरो रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट हो जाएंगे सब, इन बिटवीन क्वेश्चंस एज वेल एज एक्सट्रैक्ट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ इवान्स. यहाँ पर क्वेश्चन इज़ नॉट रिटन, वो आप लिख लेना. हु इज़ इवान्स. द गवर्नर डिस्क्राइब्ड इवान्स एज अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वॉज गुड एट इमिटेटिंग पीपल टू द सेक्रेटरी. हमें तभी से पता चलता है जब गवर्नर की और सेक्रेटरी की कन्वर्सेशन से कि इवान्स कैसा है. He also mentioned that he was a congenital kleptomaniac and has no record of violence. Violence कभी उसने नहीं की और kleptomaniac है. Second question है, what was the German teacher's opinion? टीचर का ओपिनियन क्या था? उसने कहा था ना उसमें कि I don't hope you will pass the exams. Ivan's German teacher had a very low opinion of his proficiency in German. He thought that Ivan had a very little chance of clearing O-level exam. Next, what could the governor have done to securely bring Ivan's back to the prison from the hotel Golden Lion? वहाँ से वो कैसे ला सकता था? The governor should have travelled himself in the van. खुद आना चाहिए था ना, वो नहीं आया. With Evans, and in case he was unable to do so, he should have at least checked the credentials of the guards escorting Evans to securely bring Evans back to the prison. मतलब साइलेंट प्रिजन ऑफिसर को उसने हैंड ओवर कर दिया, तो वो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर कौन था? उसका खुद का accomplice था. What important call did governor receive when the examination was going on? कौन सी important call थी? He received call when the examination was going on from the magistrate court. Magistrate court से आया था ना जिन्होंने वैन मंगवाई थी और साथ में prison officers. He was asked to provide a prison van with a couple of officers. What precautions were taken for smooth conduct of examination? क्या precautions ली गई थी? Thoroughly checking of Ivan's prison cell. उसकी prison cell की सारी checking हुई. A night before the exam. Removing of all sharp objects. उसके nail scissors, filers, razor सब कुछ ले लिया गया था. Frisking of the invigilator. जो invigilator आया था उसकी अच्छे से checking हुई. And checking his suitcase were the precautions taken for the smooth conduct of examination. What kind of person was Evans? वो कैसा था? Why did he want to sit for O-level examination? वो क्योंकि वो excuse बना रहा था ना. He seemed to be quiet and pleasant and astute person. Gentleman था वो. He was a kleptomaniac and had managed to escape the prison thrice. 3 times वो भाग चुका था. His desire to sit for O-level examination was only a plot to foresee the authorities, means उनको धोखा देने के लिए, and escape the prison. How do we know that Evans had no chance of getting through O-level examination? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, अदरवाइज उसके जर्मन टीचर ने बोला था ना why did he take the test. तो we know क्योंकि जर्मन टीचर ने कमेंट किया था इसमें कि ही हैज़ अ वेरी लो चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. तो उसने टेस्ट फिर क्यों दिया? इट वॉज ही वॉन्टेड टू गेट एन अपॉर्चुनिटी. हैड कमेंटेड दैट ही हैड एनी चांस थ्रू द एग्जाम उससे. और किस लिए दिया ये यहाँ पर प्लीज़ सॉरी बेटा मेंशन नहीं है, बट रीज़न इज़ कि ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. आप लिख लेना, he wanted to escape from the prison. On the day of the examination, with what excuse
डिड इवांस कीप स्टीफन्स आउट ऑफ हिज सेल? स्टीफन की ड्यूटी उसके सेल के अंदर लगी थी, लेकिन उसने उसे बाहर भिजवा दिया. व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न? इवांस ने क्या एक्सक्यूज दिया था कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. ही वॉज अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज एग्जाम. और एक्चुअल रीज़न क्या था? वाज टू गेट स्टीफन्स आउट ऑफ द सेल सो दैट ही कुड मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिज एस्केप. वो भाग जाए. उन्होंने ड्रेस वगैरह चेंज करी थी ना अंदर. What are the contents of small suitcase that McCleary carried? सूटकेस के अंदर क्या क्या था? उसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, ऑथेंटिकेशन कार्ड था, पेपर नाइफ था, बाइबल था और चर्च टाइम मैगजीन की कॉपी थी और एक स्मॉल इन्फ्लेटेड रबर रिंग था. What did the detective superintendent Carter inform the governor about Evans? कार्टर लेके गया था किसको? मिक्लेरी को. उसने क्या इन्फॉर्म किया? उसने गवर्नर को इन्फॉर्म किया दैट मिक्लेरी हैड स्पॉटेड इवांस इन ए कार, कि मिक्लेरी ने इवांस को कार में देखा है एंड हैड उसने कार का नंबर भी नोट किया है. दे ट्राइड टू चेज द कार बट लॉस्ट इट आफ्टर सम टाइम. कार के पीछे भी गए लेकिन वो कार भाग गई थी. तो मिक्लेरी तो बेटा आपको मैंने स्टोरी समझाते हुए बता दिया था कि मिक्लेरी वॉज मेकिंग अ ड्रामा. वो खुद ही तो इवांस था. हाउ डिड द गवर्नमेंट फाइंड आउट वेयर इवांस वाज? इट इज़ नॉट गवर्नमेंट, इट इज़ गवर्नर. द गवर्नर थॉट अबाउट द 6-digit रेफरेंस नंबर. उसने बताया था ना, इंडेक्स नंबर, सेंटर नंबर. After putting the two numbers, दोनों इंडेक्स और सेंटर नंबर together with the help of Ordnance Survey map for Oxfordshire, he reached the hotel to find Evans. Who was Carter? What did governor ask him to do? Carter कौन था? Was detective superintendent था and governor had asked him to take Evans who was disguised as injured मिक्लेरी. अब इस आंसर में क्लियर कर दी बात. भेजा उन्होंने किसको था? मिक्लेरी को. पर वो था कौन? इवांस. हाउ डिड द गवर्नर रिएक्ट? यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना. उन्होंने उसको भी क्रेडेंशियल्स उसके भी चेक नहीं किए कि हम उसे हॉस्पिटल भेज रहे हैं, पहले चेक तो कर लें वो कौन है. हाउ डिड द गवर्नर रिएक्ट टू द 2 phone calls he received? 2 phone calls आई थी. द गवर्नर हैड अ शार्प प्रेजेंस ऑफ माइंड. वैसे इंटेलिजेंट था एंड वॉन्टेड टू गिव इवांस नो चांस टू एस्केप. भागने नहीं देना चाहता था. सो ही वेरीफाइड द फर्स्ट फोन कॉल. उसने दोबारा कॉल बैक किया. वो अलग बात है कि वो बिजी आई लाइन्स. ही डिड नॉट डू सो विद द सेकेंड कॉल एज ही थॉट ही वॉज बीइंग पैरानॉइड. फिर उसने सोचा कि अब दूसरे के बारे में थोड़ा सा केयरलेस हो गया. वो करेक्शन स्लिप. हाउ डिड द क्वेश्चन पेपर एंड करेक्शन स्लिप हेल्प prisoner एंड द गवर्नर? दोनों को कैसे हेल्प मिली? द पर्पज ऑफ क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड फोटोकॉपीड शीट ऑन द क्वेश्चन पेपर एंड द करेक्शन स्लिप was to finalize the details of Ivan's plans of escape. उसके ये जो इसमें इवान्स की प्लान्स एक्सप्लेन की गई थी. It also helped the governor to locate the place where Evans was hiding. और बाद में इन्हीं दोनों की हेल्प से गवर्नर को भी पता चल गया कि इवान्स कहाँ गया हो सकता है, क्योंकि उसको जहाँ जाने की डायरेक्शंस मिली थी. Why did Evans not take off his hat when Jackson ordered him? क्यों उसने हैट नहीं उतारा? Evans knew that the duplicate McCleary, जो नकली मिक्लेरी आने वाला था, who was to invigilate during O-level examination, had short hair. उसके short hair थे. So he cropped his hair to pass off as McCleary later and wore a hat on exam day. इसलिए उसने उस दिन हैट डाल लिया कि उसके जो क्रॉप्ड हेयर हैं वो दिखाई ना दे. Hence he did not take off his hat when Jackson asked him to do so. फिर है how does McCleary explain the presence of a small semi-inflated rubber ring? What did it actually contain? जब वहाँ होटल गोल्डन लायंस में जब वो दोनों अपनी अपनी
एक्सप्लेनेशंस देते हैं ना, तो उसमें इवांस बताता है उसको, मैक्लीरी टेल्स जैक्सन दैट ही इज़ सफरिंग, वो पहले मैक्लीरी क्या बताता है कि उसको हेमोरॉइड्स है, ये पाइल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए उसे वो रबर रिंग चाहिए बैठने के लिए। और फिर इन रियलिटी क्या था कि उस रबर रिंग में पिग का ब्लड था, जिसकी हेल्प से उन्होंने वो सारा सीन क्रिएट किया और वो भाग गया। What clue did the answer sheet of Evans provide? आंसर शीट से क्या मिला? इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 217। आंसर शीट पे उसने कहा था ना लिखो तुम, और इवांस ने लिखा था। इससे उसे क्या पता चला? दोनों को मिलाएं जब तो क्या बनता था? नॉर्वे चिपिंग का, और जैसे हर सिटी का एक कोड होता है ना, उस सिटी का कोड था, और गोल्डन चेंज करके गोल्डन और लायनन का लाइन लिखवाया था ना, उससे उसे पता चला होटल गोल्डन लाइन। हाउ डिड इवांस आउटविट द गवर्नर इन द एंड? एंड में भी इवांस जीत गया, आउटविट कर गया, और गवर्नर हार गया। वो कैसे हुआ? इवांस आउटविटेड द गवर्नर इन द एंड बाय एस्केपिंग अगेन, फिर से भाग गया वो। दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट ही न्यू द प्रिजन ऑफिसर who handcuffed him and the driver who was driving the van, क्योंकि वो जो प्रिजन ऑफिसर था वो भी उसके साथ मिला हुआ था, और जो ड्राइवर था वो भी उसी का ही मिला हुआ था, क्योंकि उसकी उनके साथ भी अच्छी फ्रेंडशिप रही ना ड्यूरिंग हिज रेगुलर विजिट्स। तो इस तरह से उनको कुछ लोग, आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिपार्टमेंट को धोखा दे जाते हैं और दूसरों की साथ हेल्प कर देते हैं। ऐसा ही केस इस स्टोरी में भी हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग अपनी नोट बॉक्स पे नोट कर लें।